Hello friends, welcome back to our channel. Subscribe for stocks. So today we will talk about a company called IGPL, which is IG Petrochemicals Limited. Before we start this video, I have observed that most of my viewers have not yet subscribed my channel. So I request if in case you can subscribe my channel so that I'll also get motivated by looking at your response as well. So let's start with this video wherein we talk about IGPL's fundamental and technical analysis as well. IGPL is country's largest phthalic anhydride manufacturer and among the top 5 in the world. So they are specialized into phthalic anhydride. They are also right now doing some capex, and post expansion the company will be one of the largest producer of phthalic anhydride in the world. IGPL is also one of the lowest cost producer of phthalic anhydride globally. So this is a very big advantage with the company. Usage of phthalic anhydride is increasing in new generation products where R&D is ongoing. So this will give them a bigger platform wherein their product can be utilized. India's only manufacturer of maleic anhydride is IG Petrochemical. So this is something which is very important to note. Indian market size of maleic anhydride is 55,000 metric ton per annum. All maleic anhydride required in India is completely imported. So except IG Petrochemical, which they are making maleic anhydride, entire maleic anhydride has been imported. So this will also a thrust to make in India, and the plant being strategically located. So this is the biggest advantage also with the company, that their plant is strategically located near to the raw material supplier and port and catering to most of the customers in the western region. So इनका जो plant है बहुत अच्छी जगह पे located है. नावा शेवा जो पोर्ट है उसके बिल्कुल नज़दीक है और इसी वजह से इनको एक एडवांटेज मिल जाता है. Phthalic anhydride market is anticipated to register a CAGR growth of more than 5%, and जो इनका increase हो रहा है utilization of plasticizers which is used in the production of PVC in the Asia Pacific region. So plasticizers में जो यूज़ हो रहा है, जो PVC आप पाइप्स देखते होंगे, PVC का काफ़ी वाइड यूजेज है, उसमें phthalic anhydride is utilized as a raw material. The increasing demand of the glass fiber reinforced plastics. So glass fiber reinforced plastic जो है in various industries is utilized and also stimulate the phthalic anhydride market. And जो construction activity and government का focus है infrastructure पर, वो भी एक will augment the growth of the market as well. So overall their product is very well accepted and utilized in different industries. अब जर्नी देखते हैं थोड़ा सा IGPL की. IGPL हैज़ स्टार्टेड ऑफ देयर ऑपरेशंस इन 1988 एंड देन 1992 दे हैव स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन with the initial capacity of 45,000 metric ton and they have listed on BSE in 1992 as well. 1996 में they have increased the capacity of phthalic anhydride by 18,110 metric ton. 2000 में ब्राउनफील्ड एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लगाया थैलिक एनहाइड्राइड 2 बोल के, जिसमें कि 53,000 मेट्रिक टन का एक्सपेंशन किया. 2006 में दे गॉट लिस्टेड ऑन NSE एंड 2014 में इन्होंने एक और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लगाया थैलिक एनहाइड्राइड 3 विद द कैपेसिटी ऑफ 53,000 मेट्रिक टन एंड रेवेन्यू भी इनका 1000 करोड़ के क्रॉस हो गया था 2014 में. एंड 2017 देखते हैं तो इन्होंने एक एक्विजिशन किया which is Mysore Petrochemicals Limited with a PAT crosses 100 crores. 2017 में इनका PAT भी क्रॉस हो गया था 100 crores का. एप्लीकेशन देखते हैं थैलिक एनहाइड्राइड की. जो एंड यूज़र इंडस्ट्री है वेयर थैलिक एनहाइड्राइड फाइंड दिस एप्लीकेशन. सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड कोटिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोडक्ट्स, मेकिंग इंक्स एंड फोटोवोल्टिक सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स फॉर ऑटोमोबाइल एंड कंस्ट्रक्शन. तो ऑटोमोबाइल में जितनी भी आप जो रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से यूज़ होती है. थैलिक एनहाइड्राइड इज़ यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर देम. मैलिक एनहाइड्राइड का यूज़ देखते हैं तो स्पेंडेक्स में यूज़ होता है, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन्स एंड ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एडिटिव्स, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं.
मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखते हैं तो जैसे मैंने 1992 में बताया कि इन्होंने पहली कैपेसिटी लगाई थी 45,000 मेट्रिक टन की। उसके बाद 18,000 की इन्होंने डी बॉटलनेकिंग किया, जो कि एक्सपैंड किया अपनी उसको कैपेसिटी को, एंड 63,000 का कैपेसिटी हो गया। सिमिलरली 2000 में इन्होंने फिर से एक थैलिक एनहाइड्राइड का प्लांट एक्सपेंशन किया 53,000 मेट्रिक टन से, तो 1,16,000 मेट्रिक टन हो गया इनकी कैपेसिटी। ऐसे बढ़ते बढ़ते 2019 में अभी थैलिक एनहाइड्राइड का एक और एक्सपेंशन चल रहा है 53,000 मेट्रिक टन का। तो उसके बाद ये एक्सपेंशन के बाद हो जाएगा 2,22,000 मेट्रिक टन का इनका एक्सपेंशन के बाद कैपेसिटी हो जाएगी थैलिक एनहाइड्राइड की। अब टोटल कैपेसिटीज़ देखते हैं पोस्ट एक्सपेंशन कैसे रहेगी। थैलिक एनहाइड्राइड की मैंने जैसे बताया 31% का ग्रोथ हो जाएगा प्रोडक्शन कैपेसिटी में, 2,22,000 मेट्रिक टन का इनका पोस्ट एक्सपेंशन कैपेसिटी हो जाएगी थैलिक एनहाइड्राइड की। सेम मैलिक एनहाइड्राइड की अगर देखते हैं पोस्ट एक्सपेंशन कैपेसिटी हो जाएगी कुछ 29% का ग्रोथ हो जाएगा और 8,400 मेट्रिक टन हो जाएगा। सेम बेंजोइक एसिड में भी 30% का प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं ये लोग, और एक्सपेंशन के बाद 1300 मेट्रिक टन का बेंजोइक एसिड में भी इनकी कैपेसिटी हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखते हैं इनकी थोड़ी सी, जो कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इनका वो बहुत ही एडवांटेजियस है, एंड दैट इज़ द रीज़न लाइक इनका कैपेसिटी ऑलमोस्ट यूटिलाइज्ड है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर एक्सपैंडिंग देयर कैपेसिटीज एज वेल। इनका जो रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत ज़बरदस्त है। स्टीम जो जनरेट होती है इनके प्रोसेस से आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली। सो एंड जो इनकी क्लाइंटेल है इनकी काफ़ी अच्छी क्लाइंटेल है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट यूज़ इन मल्टीपल इंडस्ट्री है, तो इस लो कॉस्ट प्रोड्यूसर मैंने बताया था एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे व्हाट द प्रोडक्ट विच दे कैन ऑफर एट द बेस्ट कॉस्ट नोबडी एल्स कैन कॉम्पीट विद। स्ट्रैटेजिक लोकेशन मैंने बताया था, प्लांट बीइंग नियर टू पोर्ट, तो उस वजह से फ्रेट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, और जो ये लोग काफ़ी जो इनके प्रॉक्सिमिटी में ही काफ़ी केमिकल बेल्ट है, तो उनके जो क्लाइंट्स भी हैं वो वहीं पे ही अवेलेबल हैं। यूनिक पोजीशन है, मार्केट लीडर है, हैविंग ओवर 50% ऑफ द शेयर इन इंडिया। तो ये कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हैं विच बेसिकली मेक्स देम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जिसमें कि हम समझेंगे कि कहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो लो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एंड यूज़र इंडस्ट्री ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड इन इंडिया। तो ब्लू जो है इंडियन कंजम्पशन दिखाया है, और ग्रीन से वर्ल्ड कंजम्पशन दिखाया है। अगर प्लास्टिक्स की बात करते हैं तो अभी 6x की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी कुछ 3 मेट्रिक टन ही यूज़ हो रहा है पर कैपिटा, जो कि 17 मेट्रिक टन यूज़ होता है वर्ल्ड में, कंज्यूम होता है। तो इसमें 6x की पॉसिबिलिटी है। सेम अगर पेंट्स की बात करते हैं तो 1.7 मेट्रिक टन अभी यूज़ हो रहा है इंडिया में पर कैपिटा, जो कि वर्ल्ड में पर कैपिटा कंजम्पशन है 20 मेट्रिक टन, तो उसमें भी 9x की कंजम्पशन हो सकती है। सेम सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, सभी जगह अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। फाइनेंशियल्स थोड़ा सा देखते हैं कि फाइनेंशियल्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग। तो टोटल रेवेन्यू जो 15-16 में था वो कुछ 956 करोड़ इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया था। 16-17 में 1040 करोड़, 17-18 में 1148, और 18-19 में फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई थी इन्होंने 1311 करोड़ की। बट 19-20 आते आते ये फिर से डी ग्रोथ दिखाया इन्होंने इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, 1064 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया। एबिडा में देखते हैं तो एबिडा में 2015-16 में 116 करोड़ इन्होंने क्लॉक किया था, जो कि 18-19 में बढ़ा के 233 करोड़ किया, और 19-20 में एबिडा 78 करोड़ पर ही रह गया। तो अभी 2018-19 तक इन्होंने पीक दिखाया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे ये इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नीचे आती जा रही है। सेम पैट की बात करते हैं तो 15-16 में 60 करोड़, और 17-18 में 145 करोड़, 18-19 में 116 करोड़, और 19-20 में फिर से ये बिल्कुल ही नीचे आ गए हैं। ऑलमोस्ट 80% का इन्होंने लो दिखाया है इन टर्म्स ऑफ पैट एज वेल। EPS भी सिमिलरली अगर 19-20 का देखते हैं 6.8 थी, जबकि अगर 17-18, 18-19 का देखेंगे तो 47-37 ऐसे चल रहा था। तो परफॉर्मेंस स्टिल अबाउट 17-18 और 18-19 वाज फिनोमिनल, बट 19-20 में थोड़ा केपेक्स भी कर रहे हैं ये लोग, और उस वजह से ये अभी आने वाला टाइम जो है थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो 0.40 था, विच इज़ अ वेरी गुड डेट इक्विटी रेशियो। एक्सपेंशन के बावजूद भी अगर आप देखते हैं 19-20 में 0.26 कर दिया, तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली डेट रिड्यूस किया है इन्होंने।
और डिविडेंड की बात करें तो 15-16 में 2 रुपये दिया था इन्होंने, 19-20 में भी 2 रुपये दिया है, जबकि 4 रुपये तक इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड अच्छा है इस कंपनी का। हम थोड़ा और इसका बेसिक फंडामेंटल समझते हैं। तो मार्केट कैप अगर देखते हैं तो मार्केट कैप 741 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 240 चल रहा है अभी। बुक वैल्यू 205 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना हो गया? प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया 1.17। सेम अगर हम लोग स्टॉक का पीई देखते हैं तो 50 का चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 19-20 के आसपास है। तो थोड़ा सा उस लिहाज से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड होता जा रहा है। अगर हम 52 वीक हाई लो की बात करते हैं तो 284 का इसका 52 वीक हाई है, तो उसी के आसपास ही पहुंच गया है 81 रुपीज़ लो लगाकर। डिविडेंड यील्ड 0.83 है, तो इट्स अ डिसेंट वन। ROCE कम है 5.73, ROE भी कम है 3.16। सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी पुअर है लास्ट 3 ईयर्स में। मगर प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है, 69% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है और कोई प्लेज नहीं है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। डेट इक्विटी मैंने जैसे बताया 0.31 इज़ ए वेरी गुड नंबर। अब हम और थोड़ा समझते हैं इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे अभी जून में। तो इसमें इन्होंने 142 करोड़ का सेल्स दिखाया था, जो कि 43% लोअर है एज़ कम्पेयर टू जून 2019, जहाँ पे इन्होंने 247 करोड़ का सेल्स दिखाया था। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस इनके जो है मटेरियल कॉस्ट इनका 66% रहा है, और एम्प्लॉय कॉस्ट काफ़ी 4% का इजाफा हो गया है, जो कि काफ़ी कम देखने को मिलता है। एंड जून 2020 में क्यों बढ़ा है एम्प्लॉय कॉस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ऑफ द कोविड मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव नॉट रेज द सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 15 करोड़ 16 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर से काफ़ी बढ़िया, इन्होंने 11% का ऑपरेटिंग मार्जिन दिया है। पीबीटी की बात करते हैं तो 4 करोड़, और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कुछ 2.5 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट दिया है इन्होंने। अब हम इनकी थोड़ी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में 7% से ग्रो कर रही है कंपनी। लास्ट 3 ईयर्स में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है। ट्रेलिंग 12 मंथ देखते हैं तो -21% का, मतलब डी ग्रोथ दिखाया है 21% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 10 साल में भी प्रॉफिट नहीं दिखाया है, 5 साल में भी प्रॉफिट नहीं है, 3 साल में प्रॉफिट नहीं है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में तो 83% का लॉस है। स्टॉक प्राइस कैगर देखते हैं तो 10 ईयर्स में कुछ 18% का कैगर ग्रोथ दिखाया है इसने स्टॉक प्राइस ने, विच इज़ गुड। एक साल में ज़बरदस्त 73% का जंप दिखाया है। बैलेंस शीट पे बोरोइंग्स देखते हैं तो बोरोइंग्स इन्होंने 2009 में जो 60 करोड़ का बोरोइंग्स था, वो जब पीक हुआ था 2014 में 209 करोड़ का, उसके बाद इन्होंने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया, और 2019 में इन्होंने फिर से ये लेना शुरू किया डेट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंशन प्लान। तो 161 करोड़, और अभी मार्च 2020 में 197 करोड़ का इनके ऊपर डेट है, बट विच इज़ easily serviceable, and 0.31 debt to equity is a phenomenal number. कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो इनके आ रही है 84 करोड़ की मार्च 2020 में क्लॉक किया है इन्होंने। और अगर नेट कैश फ्लो की बात करते हैं तो जहाँ पे 19 में इन्होंने माइनस, मतलब इनका नेट कैश नहीं आ रहा था और कैश बर्न करना पड़ रहा था, वहीं पर इनको 2020 में 20 करोड़ का कैश आना शुरू हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। नेट कैश फ्लो इज़ ऑलवेज सिग्निफाई दैट you are doing a business and getting something out of it, not only burning your cash. अब हम अगर शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग जो प्रोमोटर्स की है इसमें 68.74%। FIIs ने 0.32 से 0.38 किया है, थोड़ा सा बढ़ाया है जून क्वार्टर में। DIIs ने थोड़ी अपनी होल्डिंग कम की है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब हम थोड़ा टेक्निकली भी देखते हैं इसको कि कहाँ पर प्लेस्ड है और कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है इस चार्ट का। पहले मैं डेली चार्ट पर लेके जाता हूँ आपको। डेली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो ये जो है इसका पहला सपोर्ट जो आता है वो आता है कुछ 175-80 के बीच में, और अगर आप इसको थोड़ा सा मैं नैरो डाउन कर देता हूँ तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस है अभी
82 के आसपास, 283 के आसपास ये जाके आया है, वही एक पहला रेजिस्टेंस है। और अगर वो क्रॉस करता है तो सेकंड जो इसका टारगेट हो सकता है 320 के आसपास हो सकता है। अगर वो भी निकाल देता है तो फिर ये जाएगा 340 345 के आसपास। और इसका जो सपोर्ट ये 100 EMA पे लेगा, ये विच इज़ 176 180 के आसपास। यही अगर हम वीकली चार्ट पर देखते हैं तो वीकली चार्ट पर भी कुछ इसी तरह का नंबर दिखता है। अभी ये 100 EMA पे प्लेस्ड है जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। अगर वो निकाल देता है तो फिर ये 320 325 के आसपास जा सकता है। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो ये शेयर अभी किसी को लेना है, सिंस अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ द बेस्ट वे टू परचेज़ एनी स्टॉक इज़ थ्रू SIP। तो SIP मोड में आप लेते रहें स्लोली एंड स्टीडीली। अपना एक टारगेट रखिए। पहला अगर आपको कुछ ख़रीदना है इसको तो 200, मेरे ख्याल से 215 के आसपास बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। एंड 200 रुपये इसका काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है। और 200 रुपये के नीचे जाना अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है हाल फिलहाल में, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरा तो फिर ये 200 रुपये पे सपोर्ट ले सकता है। तो 215 के आसपास ख़रीदना शुरू करना चाहिए, 200 रुपये तक ख़रीदें। और उसके बाद ये इसका जो टारगेट है, मैंने जैसे को बताया 280 के आसपास पहला टारगेट एंड 320 325 के आसपास सेकेंड टारगेट। So this is it for today's video. In case you like my video, you like my content, do subscribe my channel and hit the bell icon. We'll see you in the next video. Thank you so much.